इसको भी। This conference will now be recorded. Thank you. Global economic system, the Hindu view. It is now generally acknowledged that no material objectives transformation can be successful unless it is preceded and accompanied by an appropriate subjective psychological transformation. Changes in the institutional framework are comparatively easier, but they cannot yield desired results if they are not preceded by corresponding changes in the social and human mind. Dharma envisages an ever-changing socio-economic order in the light of its unchanging universal laws. Just stop! Dharma envisages an ever-changing socio-economic order. An ever-changing socio-economic order. Think about this. What they are saying. जो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, आप सबको सबके राइट दोगे. जो कैपिटलिज्म कह रहा है कि आप सबको अपॉर्चुनिटी दोगे, एवरीवन शुड बी अलाउड टू ग्रो, एवरीवन शुड अलाउड टू परस्यू द प्रॉफिट. ये लोगों ने आज अपने आप को इन आइडियोलॉजीज में बांट दिया है, लेकिन हम हमेशा से डायनेमिक रहे. हम क्या कह रहे हैं? धर्मा एनविसाजेस एन एवर चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर. क्यों? क्योंकि आज स्थिति अलग हो सकती है और कल को स्थिति अलग हो सकती है. हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे पैलियोलिथिक एरा में सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर कैसा था. वहां पर हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही थी. दे हैव टू मूव ऑल द टाइम. तो उनकी सोसाइटी छोटी थी, उनकी सोसाइटी कॉम्पैक्ट थी, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रह रहे थे. फिर हमने क्या देखा? हमारे यहाँ नियोलिथिक किया जाता है, सेटल्ड एग्रीकल्चर होने लगता है, इरिगेशन होने लगता है, हॉर्टिकल्चर होने लगता है, प्लांट का यूज होने लगता है और स्पेशलाइजेशन होने लगता है. हमारे यहाँ अर्बन सेंटर्स आने लगते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ आने लगती है और हमारे यहाँ एक प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होता है, सिटीज डेवलप होते हैं. ये क्या है? एवर चेंजिंग socio-economic order. Do you know that Manusmriti categorically denies the existence of birth-based caste? Do you know that Manusmriti categorically denies birth-based classification of caste? It categorizes caste on the basis of your economic profession. And that is why for us, for our dharma, your socio-economic order is directly dependent, directly relevant, directly related to your duty that you do in your economic life. And that economic duty will define your social status. If you are a teacher, you have higher social status. If you are a warrior, you have higher social status. If higher as in relatively low than teacher, because teacher is working for knowledge. And if you are a trader, then you also have relatively lower social status than the warrior, because he is protecting you. And if you are the manual labor, the farmer, the facility person, the mason person, then you have relatively lesser socio-economic status than trader, protector, and teacher. So in our system, this was mobile. This was completely mobile, and this was ever changing. Matlab, if I am a teacher and my son is non-skilled and he starts working as a farmer, then he would be called the man who's working for facility. And people who used to work for facility, they were called Shudras. Shudras were not untouchables. Shudras were not the people who were untouchables. Shudras were not the people, जो आज context है, Shudras were the people who are doing work of facility and they were Arya. मैंने आपको उस दिन वो दिखा दिया था, चाणक्य जो बोल रहे हैं कि आर्य कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों मिलाकर के आर्य हैं. सिर्फ ये लाइन पढ़िए. धर्मा envisages an ever changing socio-economic order in the light of its unchanging universal laws. अभी दूसरे पर तो मैं आया ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ पहले की बात कर रहा हूँ. हमारा धर्मा क्या है? हमारा धर्मा रिलीजन नहीं है, हमारा धर्मा हमारी ड्यूटी है. और हमारा धर्मा क्या कह रहा है? जो सोक्रेटिस कह रहे हैं. सोक्रेटिस ने क्या कहा? सोक्रेटिस ने कहा आपकी सोसाइटी में आपको गार्जियन चाहिए जो आपकी रक्षा कर सके, उनकी ड्यूटी गार्जियनशिप होगी. आपकी सोसाइटी में आपको ट्रेडर चाहिए जो गार्जियंस के लिए सामान इकट्ठा कर सके, उनकी ड्यूटी
ट्रेडिंग होगी। आपकी सोसाइटी में आपको फार्मर चाहिए जो गार्जियंस के लिए फूड कर सकें, उनकी ड्यूटी फार्मिंग होगी। हमारे लिए धर्मा इज नॉट रिलीजन, प्लीज, धर्मा इज ड्यूटी। वही चीज जो सोक्रेटिस वहां पर कह रहे हैं वो हजारों साल पहले हमने कह दी थी, और इसीलिए हमने कहा धर्मा एनविसाजेस एन एवर चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर। क्यों? क्योंकि उस समय पर एग्रीकल्चर मैकेनिकली हो रहा था। आज अगर और तेजी से और अच्छा एग्रीकल्चर होने लगे और ऑटोमेशन आने लगे चीजों में, 10 तरह की और चीजें आने लगे, तो आज सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर कुछ और हो सकता है। ये लगातार चेंज होता रहेगा। लेकिन अगली लाइन के लिए, इन द लाइट ऑफ इट्स अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉज। अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉज का मतलब क्या है? एक मिनट रुकिएगा, वो चिल्ला दिया दादा। एक श्लोक है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत। मनुस्मृति का 8वें चैप्टर का 15वां श्लोक। अगला श्लोक है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्म न त्यजामि मा नो धर्मो हतो वधीत। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षतः, इस सेंस को आपने अलग सेंस में सुना होगा। अब जरा इसकी वो व्याख्या सुनिए जो व्यासपीठ से आज मैं कर रहा हूं। व्यासीपीठ चल रही इस समय पे, तो ठीक, कितने लोग व्यासपीठ समझते हैं क्या? अरे व्यासपीठ होती जब वो कथाकार जब कहानी वानी वो जो सत्यनारायण की कथा पे जो बैठते हैं ना, हाँ ठीक। तो धर्मो रक्षति रक्षता का मतलब क्या है? जब आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा कर पाएगा, यही तो मतलब है। अब धर्म क्या है? ड्यूटी। और तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम्हारी ड्यूटी ये है कि एक तो तुम अपने जो काम करना है उसे करो, लेकिन तुम जो काम कर रहे हो वो है क्या? वो कब रह पाएगा? अब अगला शब्द सुनिए, ऋतस्य यथा प्रेत। ये श्लोक भी कहीं लिख लीजिएगा, सिर्फ इतना ही, ऋतस्य यथा प्रेत। मतलब ऋत क्या है? ऋत है इकोलॉजिकल बैलेंस। ऋतस्य यथा प्रेत मतलब ये क्या कह रहा है? लिव अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल बैलेंस। प्रकृति के अनुसार जियो। ऋतस्य यथा प्रेत। क्यों? क्योंकि जब तुम प्रकृति के अनुसार जियोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 को, 13 को, 14 को, 15 को अपहोल्ड करोगे, then you will be able to preserve the balance between man and nature, and then you will be able to preserve the mother nature. And only when you preserve mother nature, then only you can have a life. Because if you destroy earth, your dharma is destroyed. If you destroy earth, your family, your duty, everything is destroyed. Your livelihood is endangered. अभी हमने देखा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 में, आप ओशंस को खत्म कर रहे हो, 3 बिलियन लोगों की लाइवलीहुड, 3 बिलियन लोगों की लाइवलीहुड एंडेंजर्ड है। क्यों? ऋतस्य यथा प्रेत। ऋतस्य यथा प्रेत नहीं है, इसलिए 3 बिलियन लोगों की लाइवलीहुड एसडीजी 14 अपहोल्ड ना करने की वजह से, ओशन के एसिडिफिकेशन की वजह से खत्म हो रही है। क्या ये समझ में आ रहा है कि ऋतस्य यथा प्रेत से बड़ा अनचेंजिंग कुछ नहीं हो सकता? और जब ऋतस्य यथा प्रेत होगा,
सुनना ध्यान से, जब ऋतस्य यथा प्रेत होगा, जब इकोलॉजिकल बैलेंस के हिसाब से आप जिएंगे, तो यू विल बिकम टाइमलेस, you will become Sanatan. You can transcend the boundaries of time and you can eternally be relevant. When you will live by ऋतस्य यथा प्रेत. क्या अब आपको धर्मो रक्षति रक्षता का ट्रू मीनिंग समझ में आया? आपको पहले अपने धर्म को बचाना होगा. तुम्हारा धर्म क्या है? सनातन धर्म कहता है सबसे बड़ा धर्म है ऋत. ऋतस्य यथा प्रेत से बड़ा धर्म नहीं है. सबसे बड़ा धर्म है इकोलॉजिकल बैलेंस के हिसाब से जीना. सबसे बड़ा धर्म है प्रकृति की रक्षा करना. सबसे बड़ा धर्म है प्रकृति के अनुसार जीना, प्रकृति के साथ कोएग्जिस्ट करना, प्रकृति को नोचना नहीं, घसोटना नहीं, लूटना नहीं, डिप्राइव नहीं करना, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना. जब ऋतस्य यथा प्रेत तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा, तब जब तुम अपने धर्म की रक्षा करोगे, तब तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा कर्तव्य, कोई ट्रेडर है, कोई व्यापारी है, कोई ब्राह्मण है, तब वो सब तुम कर पाओगे, वो तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे. नॉट विदाउट ऋतस्य यथा प्रेत. हाँ या ना? हाँ या ना? ऑनलाइन वालों, एम आई ऑडिबल और एम आई टू ऑडिबल? स्पष्ट. Too audible. टू ऑडिबल. चला क्या है? अब जरा अगले पर आते हैं. सनातन मेन माहुरुताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयो. मतलब क्या है? जो सत्य के द्वारा ऊपर तपता है, ज्ञान के द्वारा नीचे जगत को प्रकाशित करता है, उसे सनातन कहते हैं. और सुनिएगा, वो आज भी नया है, जैसे कि दिन और रात अन्योन्याश्रित रूप से नित्य नए उत्पन्न होते हुए भी सनातन होते हैं. सनातन धर्म की इससे बड़ी, इससे अच्छी परिभाषा कभी नहीं बताई गई. अथर्ववेद का श्लोक है, चैप्टर मंडल 10 श्लोक 8वां. ठीक, 8वें श्लोक का 23वां सूक्त है. क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जैसे जो ईश्वर है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो ऊपर आपको सन, आपका ऊपर पूरे उसको लाइट रखता है, पूरी पृथ्वी पर जो जीवन रखता है, पूरी पृथ्वी को जो प्रकाशित करता है, वैसी सनातनता, वैसी चिरंतरता, वैसी अनवरतता, और उतना अनवरत होना, उतना कॉन्टिन्यूअस होना कि हम बिना फेल हुए, हम हर दिन, आप सोचिए, सूर्य क्या आप बोल सकता है कि टुडे आई एम ऑन ब्रेक, tomorrow is new year eve, I am going, है? क्या होगा आपका? सनातन धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा इन्होंने क्या लिखी है? सनातन कौन है? जो आज भी नया है, हमेशा जो नया रहे, हमेशा जो नूतन रहे, वो सनातन. जैसे दिन और रात एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन डेली घटते हैं, डेली नए आते हैं, लेकिन डिपेंडेंट एक दूसरे पर. वो सनातन. वो सनातनता कब आएगी? जब आप अपना सबसे बड़ा धर्म, अपना वैदिक धर्म, हिंदू धर्म को वैदिक धर्म से, हिंदू धर्म को वापस वैदिक धर्म की ओर ले जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. क्यों? क्योंकि हम ऋतस्य भूल चुके हैं. ठीक, जो ऋत को है उसे हम भूल चुके हैं. ठीक, और उसको याद करने की आवश्यकता है. ठीक, उसके बाद एक और श्लोक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ईशोपनिषद का वो है श्लोक. आप हमेशा इसको सुनते हो आखिरी में यज्ञ के. ठीक, इसका मतलब पता क्या है? सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत्य दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, और सत्य के दो कंपोनेंट क्या है? सुनना. इससे बड़ा अगर कहीं आपको मिल जाए एग्जांपल डायलेक्टिव डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का, डेलिबरेशन का, एक्सेप्टेंस का, तो आप मुझे बताइएगा.
मतलब अर्थ क्या है? सत्य दो तत्व से मिलकर बना है। सत्य का पहला तत्व है सत और सत्य का दूसरा तत्व है तत्। सत्य मतलब यह है, सत मतलब यह है, तत् मतलब वह है। मतलब यह और वह मिला करके पूर्ण सत्य होता है। मतलब मेरा और तेरा मिला करके पूर्ण सत्य होता है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं सत्य हूं, क्योंकि मैं इनकम्प्लीट हूं बिना तुम्हारे। मैं इनकम्प्लीट हूं बिना सामने वाले पर्सपेक्टिव के। आई कैन नेवर क्लेम मोनोपोली ऑफ वन थॉट। सत्य सत और तत् से मिलकर बनता है। सत्य सत मतलब मेरे और तत् मतलब तुम्हारे से मिलकर के बनता है। ये एक्सेप्टेंस है, ये है बहुलवाद। सेकुलरिज्म से बहुत बड़ा, सेकुलरिज्म से बहुत विराट, ये है बहुलवाद। और जब आप इसे सुनते हो तो दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? भारतेषु स्त्रिया पुरुषा नाना वर्णा प्रकृति ते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारतेषु स्त्रिया पुरुषा नाना वर्णा प्रकृति ते। भारतेषु स्त्रिया पुरुषा नाना वर्णा प्रकृति ते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि। भारत में रहने वाले स्त्री पुरुष, भारत में रहने वाले मेल और फीमेल अलग अलग वर्ण के, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहे हैं। नाना देव अर्चने युक्ता। जो सत्य है, जो सत्य है, सत और तत् का समागम सत्य। सत्य क्या है? सत और तत् का समागम है सत्य। वो जो सत्य है, नाना देव अर्चने युक्ता, मतलब हम अलग अलग देवों की पूजा कर रहे हैं, अलग अलग देवों की अर्चना कर रहे हैं। और ये हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये 2000 साल पुराना श्लोक है, हम तब से कर रहे हैं। तब से हम बहुलवाद, सेकुलरिज्म से बहुत विराट। सेकुलरिज्म तो कहता है टॉलरेट समबडी, जो आपके जैसा बिलीफ नहीं रखता। हम टॉलरेशन से आके जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं यार। सत्य सत और तत्, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट। तो नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते, मतलब भारत के लोग कौन है? अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले, उनकी पूजा करने वाले, इतने इतने विराट, इतने ओपन माइंडेड। नाना कर्माणि कुर्वते, अलग अलग। ये भारत की एक्सपेंस है, ये भारत की डाइवर्सिटी है। और ये भारत का क्या है? अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉज। तो अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉज में, या इंडिया वे, या कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव में अब आपको दो चीजें मिल गई। एक तो सत्य क्या है, सत और तत् का समागम। सत मतलब मैं, मतलब सत मतलब यह है, और तत् मतलब वह है। यह और वह को, दिस और दैट को मिला करके पूर्ण होता है सत्य। कोई मोनोपोली नहीं कर सकता। कोई यह नहीं कह सकता कि मेरा यशु यशु, या मेरा अल्लाह अल्लाह, या मेरा भगवान भगवान, वही सब अकेला है। नहीं, सबको मिलाकर। ठीक। फिर ऋतस्य यथा प्रेत, ऋतस्य यथा प्रेत मतलब नेचर के हिसाब से। ठीक। और इसके बाद मैंने आपको वो तो बता ही रखा है क्या, तत् त्वम असि। कुछ आपको बिल्कुल एकदम वो मिल गए, 3 3 4 4 वर्ड, उनसे खेलते रहिए। तत् त्वम असि, वो तुम हो। वो मतलब पूरी दुनिया तुम हो। तुम्हारा चश्मा कैसा होना चाहिए? तुम्हारा चश्मा, तत्त्वमसि का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? वही अयम निजा परो वेति कर्णाटक उचेत साम उदार चरिता नाम, तू चुप रहना, वसुदैव कुटुंबकम। ठीक। उदार चरिता नाम तू वसुधैव।
बहुत ज्यादा चार्ज हो गया तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहीं रोका जाए कि आगे बढ़ा जाए? एक पेज बोला था ना आपने, तो 2 ही लाइनें बोली अभी। एक पेज कराने में रात 12 बज जाएगा भाई। अरे इतना कुछ का लोड नहीं है, इतना लोड नहीं है उसका। एक छोटी सी लाइन है, अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉस का एक एपिक लाइन थी वीर सावरकर की। वीर सावरकर ने कहा था, आप मुसलमान हैं इसलिए मैं हिंदू हूं, अन्यथा मैं विश्व मानव हूं। आप मुसलमान हैं इसलिए मैं हिंदू हो जाता हूं, वरना मैं विश्व मानव हूं। सावरकर जी के बारे में जानने के लिए आप क्लास में कुछ लोगों से संपर्क करें, मेधावी, देवेश, जिन लोगों ने सावरकर वाली किताबें पढ़ रखी हैं, ठीक है, उनसे आप टाइम मांगे, 501 रुपये पेटीएम करें और उनसे जानकारी लें। फिर वो 500 में से 250 मुझे भेजें। 501 की बात नहीं है, पर देखो मतलब अगर सावरकर जी को हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं, उसके लिए भी हमें पे करने की जरूरत है। तो 1000 सर 500 रुपये कम है, थोड़ा बढ़ाओ। वो बोल ही रहा है 1001 कर देगा। आगे क्या अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉ यही नहीं खत्म होगा। क्या कहते हैं, इसको आगे और बढ़ाया जाए कि अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉ को ही खत्म कर दिया जाए? अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉ में बचा है अभी? बचा है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। आप समझिए, अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉस का एक बड़ा एपिक उदाहरण सुनना ध्यान से। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़। धर्म मतलब जितना भी तुम्हारा परेशानी है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, धर्म मतलब ड्यूटी। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। यानी कि यहां पर भगवान भक्ति मार्ग बता रहे हैं। जब आपको लगता है कि अब मेरा 60 साल हो गए हैं, जिंदगी में बहुत काम कर लिया है, सब खत्म हो गया है, ओके, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारी ड्यूटी सब कुछ छोड़ करके मामेकम शरणं व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्व सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंतित मत हो। अहम त्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंतित मत हो। यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा सबसे बड़ा भाव है, ट्रस्ट सबसे बड़ा भाव है भगवान में। भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है श्रद्धा। यूनिवर्सल वैल्यूज क्या है? यूनिवर्सल वैल्यूज है कि हमारी श्रद्धा है कि हम प्रकृति की पूजा करेंगे, वो श्रद्धा। तो सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ का मतलब क्या है? मेरी कोई ये नहीं है कि कृष्ण कह रहे हैं मेरी ही शरण में आ जाओ, नहीं, उनका कहने का मतलब है भक्ति मार्ग पर जाओ। सारे धर्मों में सेम, कोई भी धर्म हो, एक टाइम के बाद में यू गो बैक टू योर स्पिरिचुअलिटी एंड यू गो बैक टू योर बिलीफ सिस्टम। लेकिन यही कृष्ण है, यही कृष्ण है जो कहते हैं हतो वा प्राप्यसि, हतो वा प्राप्यसि
स्वर्गम जित्वा भा मोक्ष से महीम तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भा मोक्ष से महीम तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मतलब हतो वा प्राप्स्यसि, अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो भी तुम शहीद कहलाओगे। अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है, तुम अपना धर्म करते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए युद्ध क्षेत्र में तुम खत्म हो रहे हो, तब भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भा मोक्ष से महीम तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत दृढ़ निश्चयः। और अगर तुम जीत गए, तुम इस पूरी पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे कौन्तेय, खड़े हो जाओ, गांडीव को हाथ में लो और युद्ध करो, भयंकर युद्ध करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ और अपना कर्तव्य करके अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए यदि शहीद भी हो गए कोई दिक्कत। भगवान कर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, और कर्म का पाठ पढ़ाते हुए भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त कर्म। जब हम गांडीव हाथ में है तो गांडीव के हाथ में होने के समय ये नहीं सोचना है कि सामने लक्ष्य को मैं मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ना। जब गांडीव हाथ में है तो सिर्फ सामने लक्ष्य दिखना चाहिए। मारने के बाद क्या मिलेगा उसकी चिंता अभी करोगे तो लक्ष्य में सो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की सही व्याख्या बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसकी व्याख्या ये नहीं है कि आप कर्म करिए, उसमें फल की चिंता मत करिए, असंभव है। जब आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो एक ना कहीं फल रहता है दिमाग में, फल की ड्राइव से ही बंदा वो करता है। उसका मतलब है कि जब वो फाइनल मोमेंट आए, जब आप पूरी तरह से अपने आप को कर्म में डुबा चुके हो, उस समय पर अगर आपके दिमाग में प्रोसेस के अलावा कुछ और होगा, कर्म के अलावा कुछ और होगा, तो क्या होगा? आप अपने आप को डीमोटिवेटेड या डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे लक्ष्य से। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्म। और अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की जय होगी, मैं आऊंगा और मैं धर्म की स्थापना करूंगा। यहाँ पर मैं कृष्ण नहीं है, मैं हर वो नायक है, हर चाइना के लिए वो भारत है, हर पाकिस्तान के लिए या हर कोरोना के लिए वो कोवैक्सीन है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, जो समय समय पर आपको आपके कर्तव्य पथ से जब आप भटक रहे हो, अधर्म हो रहा हो, अनीति हो रही हो, तो उस समय पर आपको बचाए रखे वो है धर्म। ठीक, तो अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉज में फिलहाल इतना ही, क्योंकि माहौल बनता रहेगा, मामला आगे बढ़ता रहेगा, काफी देर हो जाएगी। एक श्लोक कहिए तो और हो जाए, जहां से खत्म किया जा सकता है। जो हमारे यहाँ शांति पाठ होता है, किसी ने सुना? पृथ्वी शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, विष्णु शांति। मतलब आप क्या कह रहे हैं? पृथ्वी शांति, पृथ्वी पर शांति हो, रापा शांति, आकाश में शांति हो, औषधया शांति, वनस्पतियों में शांति हो, विश्वदेवा शांति, पूरे विश्व में शांति हो। मतलब आप एक ऐसे वो हो
जहां पर आप क्या बोल रहे हो कि पूरे विश्व के हर एक कंपोनेंट में पीस होनी चाहिए, कहीं वॉर नहीं होना चाहिए, कहीं कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड पीस स्टडीज करने वाले जो लोग हैं, ठीक, वो ये भूल जाते हैं कि असली खेल यहाँ पर है। और आपको पता है ये श्लोक कितना तगड़ा डिजाइन है। आप इसका स्ट्रेटेजिक थॉट जानना चाहेंगे? इसका स्ट्रेटेजिक थॉट ये है कि हम दुनिया भर में शांति इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम उस समय पर दुनिया भर की 40% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। हम उस टाइम दुनिया की 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, यानी कि दुनिया की हर दूसरी चीज हमारे यहाँ बन रही थी। और हमें पता है कि हमारी जीडीपी और हमारी प्रॉस्पेरिटी वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर वर्ल्ड मार्केट में टर्बुलेंस हुई, कंफ्लिक्ट हुई, तो क्या होगा? हमारी जीडीपी गिर जाएगी। इसलिए हमने क्या बना दिया, पूरा एक बार आपको पढ़ के सुनाना आवश्यक है। ऑनलाइन वालों क्या हुआ, बहुत शांत हैं आप लोग, तो हो गए क्या? मुंह में है। किसमें है? वो वे अच्छा अच्छा अच्छा। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, शांतिर्ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति शांतिरेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 मतलब क्या है? त्रिभुवन में, जल में, थल में, गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि में, वनस्पति में, वन में, उपवन में, सकल विश्व में, अवचेतन में शांति, राष्ट्र निर्माण में, सृजन में, नगर में, ग्राम में, भवन में, जीव मात्र के तन में, मन में, जगत में और जगत के कण कण में शांति हो। जगत के कण से, ग्राम से और त्रिभुवन तक, अंतरिक्ष तक, अग्नि तक, ये हमारा वर्ल्ड व्यू है साहब। ठीक, हम ये नहीं लिखते हैं C131 पालम विहार गुड़गांव इंडिया। हम लिखते हैं जम्मू द्वीपे, आर्यावर्ते, भारत खंडे, अयोध्या नगरे। ठीक, तो कहने का मतलब है हमारा वर्ल्ड व्यू ये है। कुछ लोगों का वर्ल्ड व्यू उल्टा होता है। और यहां पर भी देखिए हमने क्या कहा, शांति कहां? त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, और आखिरी में आ रहे हैं व्यक्ति के तन में, मन में, और उससे पहले हम कह रहे हैं नगर में, ग्राम में। ठीक, वर्ड फर्स्ट, सेल्फ लास्ट। ठीक, ये है अनचेंजिंग यूनिवर्सल लॉस। ठीक, कभी और ऐसा ही जब कभी माहौल बने तो इसी लाइन पर बोलिएगा, सर हम उस दिन इस लाइन पर थे। अब आपको समझ में आया क्यों मैं मना करता हूं कि थर्ड वे नहीं पढ़ाऊंगा? देखिए थर्ड वे 2 साल का कोर्स भी नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर इसको 2 साल में भी पढ़ाने निकले तो भी ये पूरी नहीं हो पाएगी। ये ऐसी किताब है। ठीक है, द लॉज आर इटर्नल। क्या हमारे लॉस की जो इटर्नल वो है वो समझ में आई आपको? ठीक, और ऑर्डर इज ट्रांजिएंट, मतलब सदैव शाश्वत सनातन चिरंतर ऑर्डर है हमारा। हमारा ऑर्डर पीपल बरगद को पूजने से चालू होता है, गाय को मां मानने से चालू होता है, गंगा को मां कहने से चालू होता है। हमारा ऑर्डर अष्टादश पुराणानाम व्यासम अष्टादश पुराणानाम सारम व्यासेन कीर्तितम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम से चालू होता है कि परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है और किसी को सताने से बड़ा कोई पीड़ा नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये वाला हमारा ट्रांजिएंट ऑर्डर है जो कभी खत्म नहीं होता। और तुलसीदास ने क्या लिखा है? दीन दयालु विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। दीन दयालु का मतलब क्या होता है? जो दीनों के दयाल, जो दीनों की रक्षा करते हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, वो वाली श्रद्धा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ठीक, तो हमारे यहाँ ये सब वे ऑफ लाइफ है
जो हमारी ड्यूटीज को सप्लीमेंट करते हैं, हमारे धर्म को सप्लीमेंट करते हैं। हमारा धर्म वो जो ऐरावतेश्वर मंदिर में, जो चिन्ह केशव मंदिर में, जो बृहदेश्वर टेम्पल में, जो कैलाश टेम्पल में, जो हमारे यहाँ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ थ्राइव हो रही थी, जो हमारे मंदिर दान का, धर्म का, दीक्षा का, एग्रीकल्चर का, इरिगेशन का, हेल्थ का, एजुकेशन का हब बने हुए थे, वो हमारा वे ऑफ लाइफ था, जिसे आज ये रिलीजन, हम वो रिलीजन वाले नहीं। ठीक, तो ये 2 लाइनें थी भैया, थैंक यू, क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रदीप धन्यवाद तुम्हारे सजेशन के लिए।